Hi, so today we will do Physics Chapter 6, Grade 11, System of Particles and Rotational Motion. Okay, there are 17 questions. We'll start with question 6.1. Give the location of the center of mass of a sphere, cylinder, ring, and cube. Each of uniform mass density. Does the center of mass of body necessarily lie inside the body? Now don't go by this one. So geometric center in case of sphere, this will be geometric center. In case of cylinder, it will be midpoint on the axis of the cylinder. This will be the center of mass. In case of a sphere, ऐसे होता है ना स्फीयर, तो स्फीयर का जो सेंटर है वो हो गया सेंटर ऑफ मास, राइट। और रिंग के केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ द रिंग इज द सेंटर ऑफ मास। क्यूब के केस में क्या होता है, पॉइंट वेयर टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट, राइट। So cube has two diagonals, you take any two diagonals and then उनका जो intersection point है that is the center of mass. Center of mass. Okay, no. Now the question is the geometric mass always center of mass? No. There are scenarios when center of mass may not be the geometric center, or it may not be a point where the mass of the body is. Like if you see in case of a ring, a hollow ring in the center of mass is in the center and there is no mass there at the center of the ring, right? And there could be many such scenarios. Okay, or a baseball bat when in motion. Okay, so center of mass doesn't have to lie at this geometric center always. Now, moving on, question number 2. In the acyl molecule, the separation between the nuclei of two atoms is this, 1.27 Armstrong. Right, find the approximate location of the seam of the molecule given that a chlorine atom is 35.5 times as massive as a hydrogen atom. Okay, and nearly all the mass of an atom is concentrated in its nucleus. So, what we will do is we have assumed कि ये आपका हाइड्रोजन एटम है और ये आपका क्लोरीन एटम है, और क्लोरीन एटम जो है 35.5 टाइम्स हायर, उसका मास 35.5 टाइम्स हायर है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिज्यूम करेंगे क्लोरीन एटम से एक्स डिस्टेंस पर है उसका सेंटर ऑफ मास। ओके, फिर उस हिसाब से हम इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, यही फार्मूला है ना। और अगर y एक्सिस की बात हो रही होती तो हम m1 y1 प्लस m2 y2 भी लेते, बट यहाँ हमारा सब कुछ एक ही एक्सिस में है, तो हमें प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये x एक्सिस पे है, तो देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट टू दिस। ओके, so center of mass is how much? It's 0.037 Armstrong away from the chlorine atom. You could have done the same thing from the hydrogen atom, यहाँ से भी ले सकते थे। उस केस में आप ये x assume करते तो उस तरह से इक्वेशन बनाते, ओके, वैल्यू सेम आती। ओके, तो उन्होंने एज्यूम किया कि क्लोरीन जो है 0 पे है, तो बाकी जो x जो है माइनस में आया, दैट मीन्स इट्स ऑन दिस इन दिस डायरेक्शन। तो अगर आप हाइड्रोजन को 0 पे लेते तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो प्लस x पे आता, 1.27 माइनस 0.037 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6.3. The child sits stationary at one end of a long trolley moving uniformly with a speed v. तो ये आपकी ट्रॉली हो गई और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड v से जा रही है, and there's a child sitting on it, right? And the child starts moving. So they are saying कि center of mass का क्या होगा। तो center of mass पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because there is no acceleration in the system, there is no net force working on the system. For center of mass to move, there should be a net external force on the body. Okay, so center of mass will remain there where it was. Okay, and that is what is written here in theory. You can write in your own words also. Okay, next, show that the area of the triangle content between the vectors a and b is 1/2 of the magnitude of a cross b. Okay, now if you see, here we are talking of vector a and vector b, and we have to prove that area of the triangle content between the vectors a and b. तो a and b के बीच में जो है ट्राइंगल क्या बन रहा है, OMR, ओके, OMK, या
तो ये जो है OMK का एरिया क्या हुआ, OMK का एरिया हुआ, ट्राइंगल का एरिया हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, राइट। तो अब आप देखिए बेस तो आपको ए के मैग्नीट्यूड से मिल गया, विच इज हाफ इंटू ए का मॉड लेंगे। ओके, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, और हाइट क्या होगा, हाइट आप देखिए बी है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या हुआ हाइट, बी का साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा एंड ट्राइंगल MON विल बी MN by OM। ओके, दैट मीन्स MN is equal to B sin theta, so that is sorry yeah that is B sin theta, correct, right। ये हो गया आपका ये। अब क्या होता है ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, राइट, करेक्ट। तो आप देखिए हाफ ए बी साइन थीटा हो गया, सो दैट मीन्स दिस एरिया इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that A dot B cross C is equal in magnitude to the volume of the parallel pipe formed on three vectors. Parallel pipe is actually, there is a two parallel surfaces which are at some distance away. Okay, so we are seeing O, ये आपका बनाया हुआ हमने यहाँ पर डायग्राम। तो आप देखिए दो वेक्टर है AC और B, ये तीन वेक्टर्स हैं, राइट। ये A है, ये C है और ये B है। ओके, राइट। तो आप देखिए A डॉट B क्रॉस C, तो B क्रॉस C का रिजल्टेंट जो होगा वो B और C दोनों से 90 डिग्री एंगल पे होगा, राइट। तो वो किस डायरेक्शन में होगा, B क्रॉस C का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज यहाँ पर ABC तीनों 90 डिग्री पे हैं। तो आप खुद सोचिए कि इट इज लाइक दिस, XYZ हमारा जो नॉर्मल बनाते हैं। ओके, XYZ में आप देखिए XY का क्रॉस जो भी मान लीजिए वेक्टर, या AX ले लें या BY ले लें, AX BY का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसी तरह B और C का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब A डॉट B क्रॉस C क्या होगा, मान लो B और C के बीच में यहाँ पर क्या एंगल है, 90 डिग्री है। यहाँ सारे एंगल देखिए 90 है। ये हम अगर तीन की बात करते हैं XYZ प्लेन की, तो B क्रॉस C क्या होगा, दैट विल बी BC sin 90। व्हाट इज B क्रॉस C, BC sin 90, sin 90 क्या होता है 1, और A का डॉट कराना है इससे। तब आप देखिए दैट मीन्स A डॉट BC, राइट। और जो BC वेक्टर है जो उनके क्रॉस से मिला है वो एक्चुअली एक ही डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स ABC cos 0, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस होता है। A डॉट B इज AB cos थीटा, तो ABC cos थीटा है, cos थीटा यहाँ पर क्या है 0 है, 0 डिग्री, तो क्या हो गया ABC हो गया, राइट। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ABC होता है, करेक्ट। तो अगर उसके तीन आर्म ABC हो, राइट। ओके, सो नाउ बैक टू क्वेश्चन 6.6. Okay, what do you see here? Is the exam. Oh, no. 6.6. Find the components. Find the components along the XYZ axis. Okay. Of angular momentum L of a particle whose position vectors are with components XYZ and momentum is P, with components Px, Py, Pz. So P is equal to Pxi, Pyj plus Pzk. ओके, और आपका ये x इज इक्वल टू, ये छोड़ो आप, ये लास्ट में आएगा निकल के। ओके, तो आपका r क्या हो गया, आपका पोजीशन वेक्टर xi, yj, zk। तो r क्रॉस p क्या होता है, विच इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p इज इक्वल टू xi y प्लस yj प्लस zk इंटू pxi प्लस pyj प्लस pzk। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, ये इजी लिखता है। ओके, तो ऊपर IJ डाल देते हैं, फिर आपके XY पहले जो आ रहा है वेक्टर उसको लेते हैं, यहाँ पर XI YJ ZK, और नीचे आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना आता होगा, नहीं तो आप सीख लीजिए, ये 12th में ऐसे भी है आपके यहाँ मैथ्स में। ओके, सो
अब मैट्रिक्स में ऐसे करते हैं, आई व्हेन आई के लिए लेंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस करेंगे, सो इट विल बिकम आई इंटू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ओके, ये देखिए, और माइनस जे लेंगे बिकॉज क्या फंडा होता है, माइनस 1 टू द पावर आई प्लस जे। ओके, तो आप देखिए इसका आई रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है, तो 1 प्लस 2 इज माइनस 10 3, तो माइनस 1 टू पावर 3 इज माइनस, इसलिए जे को माइनस लेते हैं और प्लस के। ओके, और इनको मल्टीप्लाई, वो आप रो को वो वाला रो कॉलम छोड़ते चलो और आप मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के इंटू एक्स पी वाई माइनस पी एक्स वाई। ओके, तो ये आपका आपका एंगुलर मोमेंटम निकल आया, राइट। अब आप देखिए एंगुलर मोमेंटम जो आ गया उसके 3 कंपोनेंट्स आ गए, कौन से 3, आई एक्स इज इक्वल टू ये, आई वाई इज इक्वल टू ये, आई जेड इज इक्वल टू ये। Okay, the particle moves in the xy plane, hence the z component of the position vector and linear momentum vector becomes 0। करेक्ट, अगर पार्टिकल xy प्लेन में है तो ऑब्वियसली उसका जो z कंपोनेंट है वो 0 होगा। करेक्ट, तो आई जेड देखिए क्या है यहाँ पे, दैट इज ये आपका पी जेड 0 हो गया, z 0 हो गया, पी जेड 0 हो गया, तो आई जेड आई एक्स 0, आई वाई 0, आई जेड इज इक्वल टू, और समझने वाली बात है, जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो क्रॉस प्रोडक्ट है ऑल और पी का, पी मतलब एम क्रॉस वी, एम वी। ओके, तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी, दैट इज आर क्रॉस वी, एम तो आपका स्केलर होता है। ओके, आर क्रॉस वी। ओके, आर आपका पोजीशन वेक्टर होता है, और जो आपका पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब यहाँ कहीं है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियसली 90 डिग्री पर होगा वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर से, तो वो z डायरेक्शन में होगा। करेक्ट, so therefore when the particle is confined to move in xy plane, direction of angular momentum is only along the z direction। okay, so this was part 2। करेक्ट, अब देखिए l जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर, और पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है तो ऑब्वियसली वो z डायरेक्शन में ही होगा एंगुलर मोमेंटम, राइट। क्वेश्चन 6.7, two particles each of mass m and speed v travel in opposite directions along parallel lines separated by a distance d. Show that the angular momentum vector of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken। तो आप देखिए 2 पॉइंट ले लिए हमने, ये इधर निगेटिव बी में जा रहा है, ये पॉजिटिव बी में जा रहा है, उनके बीच के डिस्टेंस है डी। ओके, तो अभी हमने क्या किया, लेट एट अ सर्टेन पॉइंट टू पार्टिकल्स बी एट पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो वो P और Q पर है वो 2 पॉइंट्स। ओके, दोनों का मास सेम है, मास m एंड स्पीड v। ओके, तो आप देखिए, हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट P, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mv क्रॉस 0 प्लस mv क्रॉस d। ओके, mv क्रॉस 0 प्लस mv क्रॉस d इक्वल mvd। lq क्या हुआ, mv क्रॉस d प्लस mv क्रॉस 0 इक्वल mvd, राइट। कंसीडर पॉइंट r विच इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम पॉइंट q, हमने r पॉइंट से ले लिया है दोनों का। ओके, r पॉइंट से जब लिया है हमने तो ये उसका एंगुलर मोमेंटम निकल गया है, एल जी इज इक्वल टू एम वी इंटू डी माइनस वाई। इनफैक्ट इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे, तो आप इसको छोड़ो, वी विल रादर डू इट डिफरेंट वे। ये हमारे 2 पैरेलल लाइंस हैं, इस पर ये v डायरेक्शन में जा रहा है और इस पर ये v डायरेक्शन में जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। इनके ये सीधी नहीं बनी है, तो आप थोड़ा सीधा बना लेते हैं इनको। होल्ड ऑन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो विल टेक सम टाइम टू डू इट। व्हिच इज द इरेजर इज हाइलाइटेड। ओके, सो we'll clean it up। This solution टीम में बराबर नहीं रहा, I'll make the right diagram। Okay, so we have something to draw here, which is like, okay, there is a
line. Okay. 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 I'll rather try to draw a straight line here. तो ये आपकी एक लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, इनके बीच डिस्टेंस हो गई d, और दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब हम इस एक पॉइंट से यहाँ से लेते हैं, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया r1, और उस समय ये यहाँ पर होगा, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया r2, हो गया ना, राइट। नाउ you will notice there is a difference between them, and okay, so now r cross b means we will take the perpendicular distance of momentum from the point. Okay, let's say from this p point we are taking, so the perpendicular distance of the velocity vector here is, for this is r1, this is r2, so this is r1 sin theta, assuming this is theta. Okay, these two are parallel lines. Okay, these two tracks are parallel, so this is also theta. Sorry, this is also theta, right? So this is theta 1 and this is say theta 2, right? Now, if you see both are at the same point, so this is r1 sin theta 1 and this is r2 sin theta 2, correct? Now, what was the question? We'll relook at it again. Two particles with mass of speed v travel in opposite direction along a parallel line separated by distance g. Show that the angular momentum vector of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken. Let's assume this to be the point. So angular momentum vector of the two particle system. So this will be r1 cross mv. Okay. Vector of the two particle system. Okay. And this will be, so okay, this is r2 cross mv2. So this will become mv, sorry, mv r1 sin theta 1, okay, minus mv r2. So this is mv r2 sin theta 2, right? If we take mv common, we get r1 sin theta 1 minus r2 sin theta 2. So what is that? That is actually d. Okay, so this is, what is r1 sin theta 1 minus r2 sin theta 2? That is going to be the distance between these two parallel tracks, which is d. So that is mbd. So if you see, their angular momentum L is equal to L1 plus L2 is going to be same irrespective of the point you take it from, right? This is minus because of the velocity. Here the velocity was in opposite direction. So is that clear? Thank you. Moving on to next question. A non-uniform bar of weight W is suspended. Okay, so this is a bar W is suspended by at least by two strings of negligible weight. So these strings carry no mass with the vertical angle as 36.9 and 53.1. This and this. Okay, and here is a bar. Okay, of which weight is W. Non-uniform bar. Okay, so we don't know where the center of mass is.
Okay. The angles made by the strings with the verticals are this 36.9 and 53.1. That's right. The bar is 2 meter long, so the bar is 2 meter long. Calculate the distance at the center of gravity of the bar from its left end. So presuming it is a distance d from this point, right? So actually what do we do in such questions is we do two kinds of equilibrium. One is the forces equilibrium, other is the torques equilibrium. Okay, so now we notice what are the type of forces working on this system. We have one force which is tension T1 in this string. Okay, and T1 is going to have two components. One is in vertical direction, other is in horizontal direction. Other force is the T2 force in this string. Okay, these strings are massless, so there won't be any weight of these strings. So T2 will again have two components, which is T2 vertical and T2 horizontal. And there is only one component of which is weight of the bar, which is acting as distance d from one end. So that is what we have got to find, and what that d is. Okay, so how we will do it? We will first equalize the forces. So on the horizontal side, all the forces should equalize. On the vertical side, these two forces will equalize with the weight. Okay, so T1 by T2 is equal to sine 53.1 by sine 36.9. If you see this 36.9, this is T1 cos 36.9, this is T1 sin 36.9, this is T2 sin 53.1. So horizontal साइड में केवल दो ही फोर्सेज है, करेक्ट. एक है आपका T1 sin 36.9 डिग्री और दूसरा है, एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी कैन से दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, राइट. तो आपको यहाँ से T1 और T2 का रेशियो मिल गया, राइट, जो यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, तो अगर आप इन साइन की इंडिविजुअल वैल्यूज लगाएंगे तो आपको 4/3 मिलता है. दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू 4/3 T2. अब आप आगे आइए रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, इसको जो मैंने आपको पहले बोला कि फोर्सेस को इक्वलाइज करते हैं, उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ओके, क्योंकि फोर्सेस हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन को लीड करते हैं. रोटेशनल मोशन के केस में वही फोर्स वर्ड हम आपको टॉर्क से रिप्लेस करते हैं. टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क इज आर क्रॉस है. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ऑन टेकिंग द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हमने कहाँ से लिया टॉर्क? यहाँ से लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से. तब दो फोर्सेज हैं, आप देखिए, एक तो T1 cos 36.9 है, एक T2 cos 53.1 है. और सेंटर ऑफ मास से लिया हमने, तो W का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज distance of this weight from the point from which you are taking rotational equilibrium is 0. So D is equal to 0 in case of W. So hence W will have no role. तो ये जो फोर्स है ये आपको किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज. और ये जो फोर्स है इसकी टेंडेंसी होगी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की. तो बोथ द क्लॉकवाइज रोटेशनल टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल टॉर्क इक्वलाइज करेंगे. So that is T1 cos 36.9 into D is T2 cos 53.1 into 2 minus G. अगेन उनकी वैल्यू हमने लगा दी. यूजुअली टेबल में देंगे आपको, या आपको टेबल देंगे जिससे आपको निकालनी पड़ेगी कॉस की वैल्यू साइन की. तो ये हमने इक्वलाइज की, और हमें पहले से पता है T1 इज इक्वल टू 4/3 T2, वो हमने यहाँ लगा दिया. तो हमें सारी इक्वेशन एक वेरिएबल मिल गई T2 में, दो वेरिएबल दो इक्वेशन. तो हमको क्या मिल गया? T2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो हमें D की वैल्यू मिल गई 0.72. हेंस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन बार लाइज 0.72 मीटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड. अब अगर इसमें आपको अभी भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल बी ग्लैड टू आंसर. इस टाइप के क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं और देखना है कि कैसे आप ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं. या नेक्स्ट है कार वेज 1800 kg. कार का ये कार है आपकी, इसका वेट है 1800 kg. डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सेल्स इज 1.8 मीटर, जो यहाँ दी हुई है. इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सेल. ओके, तो ये हो गया 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सेल. इट शुड बी एक्चुअली दिस साइड. एनीवे, लेट मी चेक. Behind determine the force action of the level ground on each front wheel and each back wheel. अब देखिए, जो हमारा ये सिस्टम है, इस पर मैं यहाँ बनाता हूँ. तो यहाँ देखिए, ये जो बैक व्हील है और जो फ्रंट व्हील है, इस पर दो रिएक्शन, इस पर रिएक्शन फोर्स आ गई है और इस पर रिएक्शन फोर्स आ गई है, R1 और R2, ग्राउंड का जो रिएक्शन होगा. और जो कार का वेट है दैट विल बी समवेयर हियर. ओके,
सो वो उन्होंने दिया हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सेल। ये यहाँ होना चाहिए, एक्चुअली कुछ गलत दिया है इन्होंने। ओके, अभी देखते हैं आगे। डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड बैक एक्सेल डी इज 1.8। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बैक एक्सेल इज 1.05। उन्होंने बैक एक्सेल से लिया है, बट हियर इट इज फ्रंट एक्सेल, सो आई थिंक दे हैव डन इट रॉन्ग, बट एनीवे विल सी। तो इन्होंने क्या किया है, आर आर इंटू आर फ्रंट इंटू एंड दूसरा लिया आर बी, आर फ्रंट एंड आर बैक। सो यहाँ पर क्या किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो है आपका, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ से हमने टॉर्क्स लिए। तो आप देखिए क्या होगा। देखिए मेन मुद्दे की बात नंबर्स नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो नंबर्स, आई डोंट केयर, है ना। अगर मैं यहाँ पर मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है तो मैं क्या करूँगा, राइट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करूँगा। तो पहली बात तो ये होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। दूसरी बात हो गया, अगर मैं यहाँ से टॉर्क लूँगा तो आर वन का जो टॉर्क है वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज ले जाता है, आर टू मुझे एंटी क्लॉकवाइज लेता है। तो आर वन का टॉर्क शुड, आर बैक टॉर्क शुड इक्वलाइज विद आर फ्रंट। ओके, और आर बी प्लस आर एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, मुझे वहां से क्या मिल जाएगा, दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है। ओके, तो आपको आर एफ इंटू 1.05 इज आर बी इंटू, ये आपको टॉर्क से, ये आपको इनकी रिलेशनशिप मिल गई, राइट। आर एफ इज आर बी इज 1.4 आर एफ, 1.4 आर एफ प्लस आर एफ इज दिस, जो उसका वेट है कार का, तो आपको आर एफ मिल गया। अब आप देखिए कार में दो व्हील आगे होते हैं, दो व्हील पीछे होते हैं, तो ईच व्हील पे कितना हुआ, फ्रंट व्हील का आधा एक एक व्हील पे हुआ और बैक व्हील का आधा एक एक व्हील पे हुआ। दिस इज द कॉन्सेप्ट, सेम एज लास्ट वन। ओके, सो we have this question 6.10 wherein they are saying that torques of equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid sphere, both having the same mass and radius. So M and R are same, right? So cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry. The sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Which of the two will acquire a greater angular speed after a given time? So what do we know about torque? Torque is equal to R cross F. Okay, and in terms of rotation, what do we know? Torque is also equal to I alpha, wherein I is the mass of inertia, alpha is the angular acceleration, right? And this is your now we know that what is the mass of inertia. Sorry, what is the moment of inertia of? I was calling that mass of inertia. Moment of inertia of hollow cylinder. Hollow cylinder has moment of inertia which is equal to mr square. So cylinders I moment of inertia is mr square. Sometimes tongue slips. Okay. And what is the moment of inertia of a sphere? Sphere is going to be 2 by 5 mr square. Right. So let's say in case of cylinder we have alpha cylinder and this is alpha sphere. Now these two are supposed to be equal. Right? This is equal to this. That means what? That means alpha sphere is 5 by 2. Okay, mr square, because mass and radius are same, is adjusted 5 by 2 alpha cylinder, right? Now we will use equation of rotational motion, which says that omega is equal to omega final is equal to omega initial plus alpha t. So after a given time, they have not given any particular time, so after any time, so at t angular velocity is equal to initial angular velocity plus alpha t. Now presuming that initial angular velocity is same, okay, so then what do we arrive at? We arrive at omega is directly proportional to alpha. Okay, that means
omega cylinder will be omega sphere will be more than omega cylinder because alpha sphere is more than alpha cylinder. So omega sphere will also be more than omega cylinder. Okay, so which other two will acquire a greater angular velocity? Cylinder will, sphere will acquire a greater angular velocity. That is the answer. And this is the reasoning. Okay, now we'll move on to next one. Next one. So obviously you will be writing all of that statements and equation and everything, but ये जो ओवरऑल है ये मैंने आपको समझानी है. Solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with angular speed of 100 रेडियन पर सेकेंड. तो आपको ओमेगा यहाँ पर दिया हुआ है, मास ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 20 kg, ओमेगा आपको दिया हुआ है 100 रेडियन पर सेकेंड, राइट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड सिलेंडर का? दैट इज mr²/2. सो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, हाफ इंटू 20 इंटू 0.25 होल स्क्वायर, दैट इज 0.625 kg इंटू मीटर स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो आई की वैल्यू आपने अभी निकाली है ऊपर, वो आप यहाँ लगा दीजिए. ओमेगा की वैल्यू आपके पास है, तो आपको आंसर आ गया 3125 जूल्स. एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और आई भी है और ओमेगा भी है, तो आप दोनों वैल्यूज लगा लीजिए. आपको 62.5 जूल पर सेकेंड मिल गए, जूल सेकेंड्स. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6.12. चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल विद हिज टू आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड. नो, ये आपको पता है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि एक बंदा स्टूल पर बैठा हुआ है और वो स्टूल जो है ओमेगा रेडियस से मूव कर रहा है. प्रिज्यूमिंग दिस इज द गाय. ओके, so what will happen if the arms are stretched and arms are pulled back? तो जब आप आर्म्स स्ट्रेच कर लोगे तो आपका ओमेगा कम हो जाएगा, जब आर्म्स पुल बैक कर लोगे तो आपका ओमेगा बढ़ जाएगा. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या होता है वो यहाँ दिया हुआ है. सो आप देखिए, angular velocity omega 1 is equal to 40 revolution per minute and final angular velocity is omega 2. वो हमें फाइंड करनी है. that is the question. Moment of inertia of the boy with stretched hands is I1. Moment of inertia of boy with folded hands is I2. And I2 is equal to 2 by 5 I1 दिया हुआ उन्होंने आपको. Now we know that angular momentum is a constant. So dl by dt equals torque, right? And there is no torque being applied. आप देखिए लीनियर में इसका इक्विवेलेंट क्या होता है. लीनियर में अगर आपको याद हो तो लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, dp by dt इज f होता है ना. So if there is no net external f, then the change in linear momentum will be zero, right? If f is zero, then dp by dt. Similarly, if torque is zero, dl by dt is zero. So there is no external torque on the system. The boy was on the stool and he was moving on his own. Okay, that means what? dl by dt is zero. That means L remains constant. L remains constant means I2 omega 2 is equal to I1 omega 1, right? I1 ओमेगा 1 2 लिख दिया. ओके, तो आप दोनों वैल्यूज लगा लीजिए, तो आपको मिलेगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 बाई I1. सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 बाई I2, राइट, विच इज अंडरस्टैंडेबल, करेक्ट. तो वैल्यूज आपने लगाई तो आपको क्या आंसर आया, 100 रिवोल्यूशन पर मिनट. मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई. जब उसने हाथ अंदर खींच लिए तो उसकी स्पीड बढ़ गई, विच इज बट ऑब्वियस, राइट. तो फाइनल के ही कितना होगा, फाइनल के भी होगा हाफ. ये पार्ट बी है क्वेश्चन का कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द बॉय पुल्स हिज हैंड्स इन. सो हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर. तो आप देखिए डिफरेंस क्या आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ओवर ये काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी है. ओके, E2 by E1 इज गोइंग टू बी 2.5. तो ये कहाँ से आ गया, ये चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बाहर से कोई टॉर्क लग नहीं रहा है, बाहर से कुछ हो नहीं रहा है, तो इंटरनल सिस्टम इज गोइंग थ्रू ए कांस्टेंट चेंज,
I mean, going through no external torque being applied. So overall energy has to come from somewhere, right? So this energy has come from the internal muscular energy of the boy. Okay, it takes efforts, no? When you are moving, if you can experiment it yourself, sitting on a revolving chair or stool, and see when you pull your hands in, you've got to put in some energy. Next is 6.13. A rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg, radius 40 centimeter. तो सिलेंडर का मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर ऑफ द रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 13 न्यूटन. A rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. ये आ गया आपका hollow cylinder आ गया, टिपिकल और उस पर हमने क्या किया, 30 न्यूटन के फोर्स से पुल किया, राइट. एंगुलर एक्सेलरेशन आपको बताना है सिलेंडर का. अगर रोप को हमने 30 न्यूटन से पुल किया तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, आप पहले टॉर्क निकालेंगे. ये देखिए, वो जो आपका सिलेंडर है वो रोटेट कर रहा है अराउंड इट्स एक्सिस, राइट. तो हाउ फार इट इज, प्रिज्यूमिंग आपने यहाँ लगाया तो यहाँ लेंगे. लेट मी यूज द इरेजर, इसको हम उड़ा देते हैं. ये आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगा. टिपिकल आप देखिए कुएं से पानी खींचते हैं वो वाला सिनारियो है ना. तो आप रस्सी पुल करते हो, राइट, और नीचे इधर एक बकेट लटका देते हैं, राइट. दैट काइंड ऑफ सिनारियो, राइट. तो मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज 3 kg, रेडियस ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज 0.4. तो ये जो रेडियस है ये 0.4, ये आपके एक्सटर्नल फोर्स से 90 डिग्री पे है ना. टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, क्रॉस आर लिख दिया है. टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, ओके, दैट इज इक्वल टू 13 to 0.4 is 12 न्यूटन मीटर. आई आपको मिल गया एम आर स्क्वायर से. ओके, एक हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एम आर स्क्वायर होता है, तो हो गया 0.48 kg पर मीटर स्क्वायर. नाउ वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. तो आपके पास आई है और टॉर्क है, तो आप लगा दीजिए, आपको अल्फा मिल जाएगा. अल्फा मिल गया आपको 0.12 by 0.48, that is 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपको पता है लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा. देखिए लीनियर और एंगुलर में सब जगह आर का कनेक्शन है. आप देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा. ओके, लीनियर एक्सेलरेशन इज आर अल्फा. एक आर से मल्टीप्लाई करते चलिए, दैट्स इट. ओके, नाउ दिस 14 क्वेश्चन नंबर. It says to maintain a rotor at a uniform angular speed of 200 रेडियन पर सेकेंड. तो आपको क्या दिया है, यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है. इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट ए टॉर्क, तो आपको टॉर्क दिया हुआ है, राइट, टाउ. ओके, रिक्वायर्ड बाय द इंजन, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन. आप देखिए पावर कैसे होता था. यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन एम्प्लॉइज जीरो टॉर्क. In practice, applied torque is needed to counter frictional torque. Assume that the engine is 100% efficient. All this is story. Now, if you know, हमने जब ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन पढ़ा था, तो हमारा पावर क्या होता था, F इंटू पावर वॉज F इंटू V. याद है ना, बस दैट इज व्हाट इट इज. यहाँ पर क्या हो जाता है, पावर F की जगह जाता है टॉर्क और V की जगह जाता है अल्फा. So that is the only difference in rotational and linear motion. वो लगा देंगे. आपको ओमेगा यहाँ दिया हुआ, टॉर्क रिक्वायर्ड 180 न्यूटन मीटर है. पावर ऑफ द रोटर इज टॉर्क इनटू ओमेगा, which is 1 into 200, which is 36 kilowatt. Right? Now the next one. From uniform disk of radius r, a circular hole of radius. ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ये रेस्निक हेलिडेम में भी दिया है, HCV में भी है शायद, तो सब जगह ये क्वेश्चन डाला हुआ है. अच्छा क्वेश्चन है. आप देखिए इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म डिस्क है, ये आर रेडियस की बड़ी सी, ये आपकी मेन डिस्क है, और इसमें हमने r/2 रेडियस का एक टुकड़ा काट दिया है. ओके, तो सेंटर ऑफ द होल इज एट r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क. मतलब ये ऐसे है. ओके,
लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ दो, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में दो पार्टिकल है, एक आपका कैपिटल एम मास का विच इज फुल सर्कुलर डिस्क, और दूसरा आपका ये छोटा वाला डिस्क है, और उसको हम बिकॉज हमें हमने उसको माइनस में ले लिया है तो वो माइनस मास हो गया। ओके, सो m1x2 प्लस m2 m1x1 प्लस m2x2 पे m1 प्लस m2 का भी फार्मूला लगाया, बट यहाँ पर हम चूंकि काट रहे हैं, इसको ऐड नहीं कर रहे हैं डिस्क में, इसलिए हमने मास को m2 को नेगेटिव m ले लिया है। अब आप देखिए दोनों की डेंसिटी सेम है, राइट। तो अगर ये फर्स्ट फुल सर्कल आपका m मास का था, तो जो स्मॉलर सर्कल है इसकी रेडियस है r/2, तो पाई r स्क्वायर बाई 4, तो m/4 मास होगा उसका, बिकॉज डेंसिटी इज सेम। तो हमने मान लिया एक m मास है, और यहाँ पे हमने लिया उसको 0 0 ऊपर लिया हमने 0 0। यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं हम सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पर। अब x की बात करिए, y कंपोनेंट है ही नहीं, होता तो y भी लेते। ओके, और ये आपका ओरिजिन हो गया, और ये आपकी एक्सिस हो गई दो। तो हमने x निकालना है, x इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 बाई m1 प्लस m2। तो m इंटू जीरो ले लिया, क्योंकि हमारा जो मेन डिस्क है उसका मास तो यहाँ सेंटर पर ही है, तो दैट इज एट जीरो डिस्टेंस। तो m इंटू जीरो हो गया, x इक्वल टू m इंटू जीरो। दूसरा मास हमने माइनस m लिया, माइनस m डैश इंटू r/2, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होगा, यहाँ पर लग रहा है m डैश। ओके, यहाँ लग रहा है m। ओके, तो बस बाई m प्लस माइनस m। अब m माइनस m डैश की हमने वैल्यू रख दी है, राइट, विच इज माइनस m/4 इंटू r/2 बाई m माइनस m/4। तो आपका क्या आंसर आया, आपका आंसर आया माइनस mr/r इंटू 4/3, दैट इज माइनस r/6। ये 4 लिख दिया है, माइनस r/6। तो माइनस r/6 मतलब, अब आप देखिए आपने क्या एक्सेस लिया है, एक्सेस पर माइनस r/6 मतलब जो मेन डिस्क थी उसके सेंटर से r/6 डिस्टेंस पर, ये यहाँ पर नेगेटिव साइड में टुवर्ड्स द अदर साइड। और वो समझने वाली बात भी है, अगर एक इतने बड़े सर्कुलर डिस्क में से आप इस साइड से एक सर्कल काट दोगे, तो मेजर पोर्शन काट दोगे, तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स the portion which has more mass, so this is shifted by r/6 to the other side। ओके, ये डिस्टेंस है, ये आपका नया सेंटर ऑफ मास। आपका ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास जब डिस्क नहीं हमने चॉप किया था ये छोटा वाला, तो क्या था, तो यहाँ था, सेंटर ऑफ मास हैज मूव टू मोर हैवी पोर्शन, राइट। ये है यहाँ टेक्स्ट में, आप देख लीजिए, यू नो हाउ टू डू इट, हाउ टू राइट स्टेटमेंट, बट उसका जो मेन है क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस। 16 करते हैं। 16 तो बहुत इजी है, 10th ICSE में एक्चुअली ये पढ़ाया जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। CBSE में अभी 12th में है ये। ओके, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स करके पढ़ाते हैं वो लोग, टॉर्क नहीं बोलते हैं। तो मीटर स्टिक इज बैलेंस ऑन अ नाइफ एज एट द सेंटर, तो ये आपका नाइफ एज हो गई, इस पर हमने पिवोट किया है, और 2 कॉइन्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम और पुट ऑन टॉप ऑफ अदर एट द 12 सेंटीमीटर मार्क। तो आप देखिए जो मीटर स्टिक है वो तो हमेशा सेंटर पर बैलेंस होगी, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो है मास लग रहा है, यहाँ पर हमारा उसका वेट लग रहा है। अब वो कह रहा है जो नया पिवोटिंग पॉइंट है वो 45 पर है, 45 पर है मतलब यहाँ से 5 डिस्टेंस पर है वो, राइट। ये जो डिस्टेंस है ये 5 हो गई, 45 माइनस 50, राइट। और ये डिस्टेंस क्या हो गई, 50 कितने पर लगाया, 5 ग्राम की कॉइन्स 12 सेंटीमीटर मार्क पे लगाया, तो ये 12 है और ये 45 है, तो ये क्या हो गया, ये 33 हो गया, है ना। ये आपका 33 सेंटीमीटर हो गया। तो आप देखिए, अब आप इस पर जो पिवोट पॉइंट है उस पर आप टॉर्क निकाल लीजिए। तो ये जो वेट लग रहा है कॉइन्स का, दिस विल ट्राई टू टेक द स्केल एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो हमारा वेट है स्केल का, दिस विल ट्राई टू टेक द वेट क्लॉकवाइज। तो जो दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है या टॉर्क है, दे शुड बैलेंस आउट, अदरवाइज बैलेंस नहीं आएगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बोथ द टॉर्क शुड बैलेंस आउट, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज
is equal to torque clockwise. करेक्ट, बस ये लगा दिया, दोनों को बैलेंस आउट किया, 10 इंटू जी 45 माइनस 12 इज इक्वल टू एम डैश 50 माइनस 15, आपको एम डैश की वैल्यू मिल गई। तो मास ऑफ द मीटर स्टिक इज 66 ग्राम। ओके, आपको यहाँ पर मीटर स्केल का मास बताना था। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, बहुत अच्छी बात है, हैज अ मास ऑफ 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 kg। ओके, वेरी गुड, ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनका मास दिया हुआ है। ओके राइट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है, और इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए 2r है, तो ये r हो गई और ये दूसरी r हो गई। इन्होंने किसी अलग तरीके से किया है हमारे यहाँ। वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दिया है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे, मास ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इज m/2, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ऑलवेज O2, तो O2 में दो दो जो है एटम्स हो गए, तो ईच एटम का वेट आप निकाल लीजिए यहाँ से m/2 से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल बी m/2 r स्क्वायर प्लस m/2 r स्क्वायर, ये r हो गए डिस्टेंस, दैट इज mr स्क्वायर, राइट, और दैट मीन्स r इज इक्वल टू रूट ऑफ I ओवर m। अब ये तो हमारा, आपको यहाँ से आपको r मिल जाएगी। अब आप देखिए क्या दिया है, दैट के रोटेशनल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ के ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल के होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशनल होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो वो लगा दिया। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 एम बी स्क्वायर। व्हाट इज आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज इक्वल टू हेयर एम आर स्क्वायर, अभी निकाला था हमने ऊपर, तो आई की जगह हमने एम आर स्क्वायर लिख दिया, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 एम बी स्क्वायर, राइट। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 एम बी स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल हो गया, राइट। तो आपको क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा तो आ गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2/3, और वी भी स्क्वायर है तो वी आ गया, और नीचे आर भी स्क्वायर है तो आर आ गया। वी आपको दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है, आर आपने अभी निकाला था ऊपर, राइट। तो ये आपका वैल्यूज लगा दीजिए, आपको आ गया 6.8 × 10⁻²। सो वी विल ऐड मेनी मोर क्वेश्चंस। एक्चुअली जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है उसमें 21 क्वेश्चंस हैं, एडिशनल भी है, और शायद नई टेक्स्ट बुक में 17 है। तो हम ये नई टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे, और भी exercises will keep adding, and please keep connected, please subscribe, ask your questions in comments. Okay, handwriting of mine is not too good, but then I hope you are able to understand. Thank you for being there.